Hello students, welcome to our online classes. In our previous class, we have discussed about network devices and communication of networks. Today, we discuss the third part of this chapter, that's name is network architectures. A network architecture represents the complete framework of a computer network. In other words, it depicts how the computers are organized in a system and how tasks are allocated between these computers. That means, network architecture is the presence in which we connect the computer from one to each other. The two most widely used network architectures are peer-to-peer architecture and client-server architectures. These network architectures are divided into two parts, peer-to-peer architecture and client-server architecture. So, first of all, we discuss what do you mean by peer-to-peer architecture. In peer-to-peer architecture, all the computers are connected to each other and are called peers. Data is shared directly between the computers as there is no server in peer-to-peer networks. Okay, look at this picture. There are 7 computers in this picture. Look at this. These computers are called peer A, peer B, peer C, peer D, peer E, peer F and peer H. So, one computer get connected to another computers. This computer is called peer. Data shared directly between the computers as there is no server. So, यहाँ पर जो कंप्यूटर दिया गया है ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. यहाँ पर कोई सर्वर नहीं है. एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे में जाएगा, तीसरे में भी जाएगा, चौथे में भी जाएगा. तो सारा कंप्यूटर सारे कंप्यूटर के साथ एक साथ कनेक्टेड हैं. दे आर इजी टू सेटअप एंड लेस एक्सपेंसिव. फेलोर ऑफ वन पेयर डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ अदर पेयर्स. तो अगर यहाँ पर कोई एक डिवाइस खराब भी हो जाता है तो नेटवर्किंग सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि ये सारे कंप्यूटर इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. दैट इज कॉल्ड peer to peer architecture. Okay, now the second was client server architecture. In a client server architecture, computers are dependent on a centralized computer for services. The centralized computers act as a hub and is called the server. All the computers connected to the servers are called clients. The server is the heart of the networks. It manages and provides resources to the clients in the network. Clients are the computer services, data storage, etc. from the server. Complete network is depend on the server. If the server fails, complete network goes down. Now look at this picture. This is the client server networks pictures. This one server and the all are called client. So all computers are connected to server. So server is the heart of this system because in this area the data will be shared from this computer. Client 1, client 2, client 3, these all computers are connected to server. If the server fails, computer's network goes down because this is the main parts of this network. So this part will be fail, the networks will be fail. मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बहुत सारा पिक्चर्स. ये जो 20 वाला सिस्टम है इसको सर्वर कहा जाएगा क्योंकि यहाँ से बाकी सारे सिस्टम में डाटा ट्रांसफर होगा. अगर इनमें से कोई एक सिस्टम खराब हो जाता है तो नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन अगर ये मेन पार्ट जिसे कहते हैं हार्ट ऑफ द नेटवर्क्स, ये सर्वर अगर खराब हो जाएगा तो टोटल नेटवर्क्स फेलोर हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स. द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो ए कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन बी ऑफ 4 बेसिक टाइप्स. द फर्स्ट वन इज PAN, that is square meter around a person. The second is LAN. The limitation of LAN is a room, buildings and campus. The third one is MAN. The limitation of this MAN is 10 kilometers and WAN is cover the whole area of this world. Means to say the country and the continents. So we discuss one by one. First we discuss personal area network, that is called PAN. A personal area networks enable communication between computers or mobiles and other devices within a range of 10 meters. This could be inside a small office or residence. A typical PAN would include one or more computers, telephones and peripheral devices such as a printer.
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क्स है इसको हम पर्सनली यूज़ करते हैं। आइदर ये एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक रूम में हो सकता है, या ऑफिस में हो सकता है, एक छोटे से ऑफिस में। तो ये जो पेन होता है उसके साथ प्रिंटर, जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं जैसे कि टेलीफोन, अदर कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, ये सब अटैच होके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, it allows you to send a document to a printer in the office upstairs while you are sitting in your cabin downstairs. Pen can be wired or can be wireless. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत दिया गया है कि अगर हम किसी प्रिंटर में डॉक्यूमेंट को निकालना चाहते हैं, हम बैठे अपस्टेयर पर, while you documents to a printer in the office upstairs. अपस्टेयर में के प्रिंटर में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम नीचे के स्टेयर पर बैठे हुए हैं जो कि जहाँ हमारा केबिन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पेन के जरिए हम अपने कंप्यूटर में उसी प्रिंटर का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको निकाल सकते हैं। पेन कैन बी वायर्ड और कैन बी वायरलेस। तो ये पेन दो तरीके के होते हैं, नेटवर्किंग सिस्टम दो तरीके होते हैं। एक वायरलेस सिस्टम होता है जो लैपटॉप के थ्रू होता है, और जो वायर्ड सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क्स। A local area network is designed for small areas such as office, group or building, school, college, campus, etc. LAN can be built using inexpensive hardware such as hubs, NICs and cables. A smallest LAN can be of minimum 2 computers, while larger ones can accommodate thousands of computers. LANs are used widely as they are easy to establish and maintain. LANs enable communication within a range of 1 kilometer. तो ये जो लैन होता है, हम ये लैन कहाँ यूज करते हैं, जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम हमारे खुद के एरिया में ये काम करता है, जो कि जिसका लिमिटेशन रेंज है 1 किलोमीटर। तो ये कोई बिल्डिंग में, स्कूल्स में, कॉलेज कैंपस में, इन जगह पर इसको हम यूज कर सकते हैं। ये मिनिमम 2 कंप्यूटर्स को लेकर होता है, और अगर लार्जर एरिया होगा तो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स भी इसके साथ हम कनेक्टेड कर सकते हैं। Next, metropolitan area networks. A metropolitan area network is similar to a LAN. ये जो metropolitan area networks है ये LAN के साथ सेम है, but it spans an entire city और campus. लेकिन ये जो LAN था ये एक कैंपस के बीच में या एक स्कूल के बीच में लिमिटेड था, लेकिन ये क्या है, टोटल सिटी को कवर करेगा। ये जो मैन होता है ये टोटल सिटी को कवर करेगा। ए मैन इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग मल्टीपल LANs. बहुत सारे कंप्यूटर्स को लेकर एक लैन बनता है, लेकिन बहुत सारे लैन के कनेक्शन में एक मैन बनता है। ए मैन कैन कवर एन एरिया फ्रॉम फ्यू माइल्स टू 10 माइल्स। तो इसका लिमिटेशन कितना है, 10 किलोमीटर। ए मैन इज ऑफन यूज टू कनेक्ट सेवरल लैन्स टू फॉर्म ए लार्ज नेटवर्क्स। मैन्स एंड एक्सट्रीमली एफिशिएंट एंड प्रोवाइड्स फास्ट कम्युनिकेशन विद ए रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये जो लैन और मैन के बारे में हमने पढ़ा, ये दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन ये क्या करेगा, एक फ्यू एरिया को कवर करेगा जो कि 1 किलोमीटर के अंदर सीमित है, लेकिन ये मैन क्या करेगा, ये 10 किलोमीटर तक नेटवर्क कवर करेगा। द लास्ट वन इज, देखिए यहां पर दिया गया है लैन, बहुत सारे लैन को लेकर एक मैन क्रिएटेड हुआ है। तो ये बहुत सारे सिटी में जितने भी एज ब्रांचेस होते हैं, ये सारे ब्रांचेस को एक साथ कनेक्टेड करवाता है। नेक्स्ट, वाइड एरिया नेटवर्क्स, जिसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इट कवर्स द होल वर्ल्ड। ए वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स ऑन ए लार्ज स्केल जियोग्राफिकली। ए WAN is a combination of multiple LANs and MAN. This ensures communication between two users sitting on 2 different locations. यहाँ पर दिया गया है, देखिए लैन जो होता है 2 या 3 कंप्यूटर को लेकर कनेक्ट होता है, बट मैन क्या होता है, बहुत सारे लैन को लेकर कनेक्टेड होता है। लेकिन WAN क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लैन एंड मैन। तो बहुत सारे लैन और मैन को लेकर ये कनेक्टेड होता है, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सिस्टम वेयर 100 of branches in different cities are connected together to share their official data. तो हमारे एरिया में हर सिटी में एक बैंक होता है, तो हर बैंक का ब्रांचेस जो होता है, सपोज SBI बैंक का जितना भी ब्रांचेस होगा हर सिटी में,
तो ये क्या करेगा, सिटी के अंदर, तो सिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर देयर ऑफिशियल डाटा। तो डिफरेंट सिटीज जो होते हैं उन सारे सिटी में जितने भी SBI बैंक हैं वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे को अपना डाटा शेयर करेंगे। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज व्हेन, सो दिस व्हेन कवर द होल वर्ल्ड ऑफ द whole country and the continents. Next, network topology. What do you mean by network topology? In network topology represents the physical and logical structure of a computer networks. In other words, in network topology describes the arrangement of various nodes through lines of connections and determines how the computers will communicate in the networks. Network topologies are categorized in the following. So network topology क्या है, यह हम पढ़ेंगे। Network topology is the pattern in which nodes that is computers, printers, routers or other devices are connected to a local area networks. That means network topology एक पैटर्न है जिसके जरिए कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर और अदर डिवाइसेस को हम कनेक्टेड कर सकते हैं, किसके जरिए, लोकल एरिया नेटवर्क्स के जरिए। There are 6 principal topologies used in LANs, that is bus topology, ring topology, star topology, tree topology, hybrid topology and mesh topology. So यहाँ पर 6 टोपोलॉजी के बारे में दिया गया है जिसको हम one by one डिस्कस करेंगे। The first one is bus topology. In bus topology, all the nodes are connected to a single cable. The cable acts as the backbone of the networks. One of the computer is the networks, acts as a server and leads the networks. तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है बस टोपोलॉजी में एक केबल है और केबल के थ्रू एक सिस्टम कनेक्टेड है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, अगर एक सिस्टम यहाँ पर खराब हो जाता है तो नेटवर्क्स में कोई भी खराबी नहीं आती है, वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन अगर केबल इसका बैकबोन है, अगर केबल में कुछ खराबी आती है तो टोटल नेटवर्क्स फेलोर हो जाएगा। तो बस टोपोलॉजी का मतलब है केबल के थ्रू डाटा ट्रांसफर होगा एक सिस्टम सारे सिस्टम्स को। ओके, नेक्स्ट, ring topology. In ring topology, all the nodes are connected in a circular fashion. Each node is directly connected to the adjacent node. Exchange of data takes place with the help of token passing. यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं और ये जो सिस्टम्स है सर्कुलर फॉर्मेट में एक साथ कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो ये रिंग की तरह कनेक्टेड है, तो ये भी यहाँ से डाटा एक दूसरे को शेयर करेंगे। टोकन पासिंग, ए टोकन कंटेन्स ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज डेस्टिनेशन नोड एंड होस्ट एड्रेस along with the data. The token is passed to the next node which checks whether the data was for it or not. If yes, it receives the data and passes on the empty token further. Otherwise, it passes the token along with the information to the next node. This process continues till the data reaches the desired destination. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए, अगर हम डाटा को एक सिस्टम में भेजते हैं तो वो सिस्टम पहले क्या करेगा, वो चेक करेगा ये डाटा सही है या गलत है, फिर वो इसको रिसीव करेगा, फिर दूसरे नोड्स पर ट्रांसफर करेगा। ऐसे करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके सारा डाटा एक दूसरे के पास पहुंच जाएगा। इफ वन नोड इज फेल, कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड, इंडिविजुअली कनेक्टेड नहीं है, ये सिस्टम रिंग फॉर्मेट में है। अगर यहाँ पर एक भी सिस्टम खराब हो जाता है तो यहाँ का डाटा यहाँ जा नहीं पाएगा। तो अगर एक भी सिस्टम यहाँ पर, इसका डिसएडवांटेजेस है, इफ वन नोड फेल्स कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन। लुक एट दिस पिक्चर, द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए हब। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे हब क्या है। हब एक डिवाइस है जहाँ पर सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं थ्रू दी पोर्ट और थ्रू दी केबल के थ्रू वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। द हब एक्ट्स लाइक ए नेटवर्क सर्वर। तो ये हब किस तरीके से काम करेगा, एक नेटवर्क सर्वर की तरह काम करेगा। ऑल द नोड्स send data to the hub and the hub broadcasts the data to each node in the network. So look at this picture. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बीच में एक सर्वर है और इस सर्वर के साथ सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं।
सो इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ट्विस्ट पेयर, कोक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं इसका फंक्शन। तो ये सारे ट्विस्ट पेयर, कोक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। और इसका डिसएडवांटेजेस यही है, इफ द हॉप फेल्स कंप्लीट नेटवर्क गो डाउन। अगर एक सिस्टम में खराबी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बीच वाला सर्वर में कोई खराबी आती है तो टोटल नेटवर्क जो होता है वो फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट, मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी इस नोड इज कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स इन द नेटवर्क्स। लुक दिस पिक्चर, यहाँ पर आपको 5 सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो पांचों सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू दी केबल। ये सिस्टम इसके साथ, ये सिस्टम इसके साथ, ये सिस्टम इसके साथ, तो ये सब एक दूसरे के साथ टोटली कनेक्टेड है। एवरी नोड नॉट जस्ट सेंड्स डाटा और अदर नोड्स बट ऑल्सो रिसीव डाटा फ्रॉम ऑल द अदर्स नोड्स। अगर कोई सिर्फ सिस्टम किसी के डाटा को रिसीव करने के साथ साथ वो डाटा को सेंड भी करता है। Therefore, if one connection breaks down, it would not affect the remaining networks functionally because these computers are connected to each other. So, if one connection breaks down, it would not affect the remaining networks. अगर एक नेट सिस्टम खराब हो जाता है तो नेटवर्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उसके फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। ये जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा। दिस टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। तो ये टोपोलॉजी वायरलेस नेटवर्क्स पर काम करता है। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स फुली कनेक्टेड, रोबस्ट एंड नॉन फ्लेक्सिबल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो ये एक नॉन फ्लेक्सिबल नेटवर्क स्ट्रक्चर है जो कि वायरलेस कनेक्शन में नेटवर्क्स पर यूज होता है। द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस नेटवर्क टोपोलॉजी इज इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, ट्री टोपोलॉजी। In tree topology, nodes are connected in hierarchical manner. Look at this picture. Hierarchical manners मतलब एक सिस्टम से दो सिस्टम से 3 सिस्टम, इस फॉर्मेट में ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। One node is defined as a root node and all the other nodes are connected to it. तो यहाँ पर एक सिस्टम रूट्स नोड की तरह काम करेगा और ये बाकी सारे सिस्टम से कनेक्टेड होगा थ्रू दी केबल। इट इज ऑल्सो नोन एज हियरार्चिकल टोपोलॉजी, जिस ट्री टोपोलॉजी को हियरार्चिकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। टू इम्प्लीमेंट ट्री टोपोलॉजी यू नीड मिनिमम 3 लेवल्स ऑफ हियरार्ची। ट्री टोपोलॉजी इज आइडियल इफ वर्कस्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप्स। इफ रूट नोड फेल्स, कंप्लीट नेटवर्क गोज डाउन। अगर यहाँ मेन सिस्टम खराब हो जाता है तो नेटवर्क पूरा फेलियर हो जाएगा क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क्स। So last one is hybrid topology. This is the biggest topologies of the other topologies. Hybrid topology is a combination of 2 or more topologies. तो हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बॉस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, star topology, ring topology and boss topology. Means to say this topology connected to the others topology. For example, in an organization there are multiple departments. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर रिंग टोपोलॉजी की तरह है, दूसरा डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर स्टार टोपोलॉजी की तरह है। हाइब्रिड टोपोलॉजी इनहेरिट्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टोपोलॉजीज इंक्लूडेड। तो स्टार रिंग और स्टार बॉस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये क्या करेगा? दोनों डिपार्टमेंट के टोपोलॉजी को कनेक्ट करेगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी इनहेरिट्स द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द टोपोलॉजीज इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जो हाइब्रिड टोपोलॉजी दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे टोपोलॉजी दिए गए हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। So that's all from my side. If you have any questions in your mind, please do not hesitate to comment below. Thank you for watching this video.